So, welcome, my dear friends. Today again, I am Prabhat Sharma in front of you once again with highlighting the main points of a lesson, which is part 2 of Glimpses of India, and the name of lesson. And the name of the place which has been described here is Coorg. So, without wasting much of your time, let us come to the main points. Point number 1. Coorg or Kadagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests. The season of joy commences from September and continues till March. The people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. It means either they have come from Greece or from Arab countries. This is seen in the tradition, whatever traditions they follow. Marriage means the rituals during the marriages, religious rites, and dress called kupia. It resembles the kuffia worn by Arabs and the Kurds. Next point. The Kurd regiment is one of the most decorated regiments in the Indian Army. डेकोरेटेड मतलब सबसे ज़्यादा मेडल्स उनको मिले हैं कुर्ग रेजिमेंट को इंडियन आर्मी में बहादुरी के पदक बहादुरी के मेडल गैलेंट्री ब्रेवरी अवार्ड Cordovers are the only people in India who are permitted to carry firearms without a license. उस जगह के लोग एकमात्र लोग हैं इस देश में जिनको बंदूक रखने का अधिकार है बिना लाइसेंस की बंदूक पिस्तौल रिवॉल्वर्स गैर लाइसेंसी शस्त्र. The river Kaveri begins from the hills and forests of Coorg. The river Kaveri is having its beginning or commencement from that forest. Coorg has a rich flora and fauna. Flora and fauna matlab birds and trees, living and plants. Like a variety of plants, birds, and animals can be seen there. तरह तरह की दिस इज कल्चरल डाइवर्सिटी ओवर देयर एंड diversity of various species found in the forest or jungles. Coorg offers a number of adventure sports for the tourists. और बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं जी. देखते हैं जाकर ही देखना पड़ेगा साहब. ओके वी विल sometime plan a school tour to Coorg. Okay guys, let us see how many agree to it after this pandemic is over. Obviously, once this pandemic COVID-19 gets finished from the earth, one can have a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. The Tibetan monks in red orche and yellow robes can be seen at Byalakkuppe, a Tibetan settlement where the Tibetans live. There are many other surprises waiting for the tourists to discover at Coorg. So Coorg एक बार आप जाएं, आप देखेंगे, you will really enjoy, you will really feel better and best, and you will
have a lot of astonishment and surprises to be met over. Hello students, I am Ruchika from English Academy and today I have a lesson for students of class 10th. This is from your English First Flight book. The name of the chapter is Glimpses of India, chapter number 7. यहाँ पर आज हम इसका second part discuss करेंगे, Coorg, written by Lokesh Abrol. Before I begin with the chapter, I'll give you an introduction to this lesson. Coorg is the name of a hill station in Karnataka state. कर्नाटका स्टेट में वेस्टर्न घाट्स में ये एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है कूर्ग। इसके इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कूर्ग इज कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। नाउ वी ऑल विल वंडर कि क्या कूर्ग एक अलग कंट्री है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। राइटर ये कहना चाहते हैं कि कूर्ग में कॉफी की प्लांटेशंस बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए वो उसे कॉफी कंट्री कह रहे हैं। And he says it is famous for its rainforest and spices. तो कूर्ग में रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। What is a rainforest? कोई भी इक्वेटोरियल जगह होती है जहां पर बहुत घने घने फॉरेस्ट होते हैं, तो वो रेन फॉरेस्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, बिकॉज वहां पे अबंडेंट रेनफॉल होती है और उसकी वजह से बहुत ही डेंस फॉरेस्ट। तो कूर्ग में भी ऐसे ही रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्लस यहाँ पर स्पाइसेस की बहुत प्लांटेशंस देखने को मिलती हैं, अलग अलग स्पाइसेस जो कि हम अपनी कुकिंग में यूज करते हैं, जैसे कि क्लोव्स, टर्मरिक, क्यूमिन, कार्डामोम, सिनेमोम, बे लीव्स, ये सब टाइप के जो स्पाइसेस हैं ये यहाँ पर बहुत क्वांटिटी में उगते हैं। तो कूर्ग की क्या खासियत है? यहाँ पर कॉफी प्लांटेशंस हैं, स्पाइसेस उगते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं, जिन्हें देखने के लिए, जिनकी नेचुरल ब्यूटी एंजॉय करने के लिए बहुत टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं। Now we'll begin the chapter. We'll read it. I'll explain the difficult word meanings and the story to you. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted means being carried along gently by air. तो यहाँ पर सबसे पहले राइटर हमें कूर्ग की लोकेशन बता रहे हैं। उसकी लोकेशन कहाँ है? मैसूर और मैंगलोर के मिडवे, यानी कि उनके बीच रास्ते में। तो यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, दिस इज मैसूर एंड दिस इज मैंगलोर, और दोनों जगहों के बीच में मिडवे में यहाँ पर है कूर्ग नाम का टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो कि बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है। और राइटर क्या कह रहे हैं इस डेस्टिनेशन के बारे में? वो ये कह रहे हैं इट इज अ पीस ऑफ हेवन। हेवन जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस जगह की खूबसूरती इतनी ज्यादा है कि आप इसे हेवन मान सकते हैं, और ऐसा लगता है कि भगवान के घर से हवा के साथ उड़ता हुआ ये हेवन का टुकड़ा यहाँ पर आकर सेटल हो गया। तो राइटर को कूर्ग इतना सुंदर लगता है कि वो उसे हेवन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आगे वो क्या कहते हैं? He says this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. Martial means having to do with war, यानी कि जो लोग वॉर में हिस्सा लेते हैं। तो जो कूर्ग हिल स्टेशन है, यहाँ पर बहुत ही वास्ट और बहुत ही ह्यूज हिल्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर एक बहुत ही प्राउड रेस ऑफ वॉरियर मेन रहती है। साथ ही साथ यहाँ की विमेन बहुत खूबसूरत हैं, और यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। कूर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेनफॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। सो कूर्ग इज ऑल्सो नोन एज कोडागु। तो कूर्ग का एक और नाम क्या है? कोडागु। ये कर्नाटका स्टेट का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका स्टेट का मैप, और इसमें ये है कूर्ग डिस्ट्रिक्ट। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड यहाँ पर अगेन वही बात राइटर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, स्पाइसेस हैं और कॉफी की प्लांटेशंस हैं। रेन फॉरेस्ट क्या है? आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहां पर बहुत ही ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है। हॉट एंड ह्यूमिड मीन्स वहां पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट।
और कूर्ग में भी ऐसे ही रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं बिकॉज ये भी इक्वेटोरियल जोन में लाई करता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे मसालों की और कॉफी की प्लांटेशंस भी हैं। Evergreen rainforests cover 30% of this district. During the monsoons, it pours enough to keep many visitors away. तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड है, जो एरिया है, उसका 30% एरिया को रेन फॉरेस्ट कवर करता है। दैट मीन्स इफ समवन आस्क्स यू हाउ मच एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट इन कूर्ग, यू कैन से 30%। एंड देन द राइटर सेज कि मॉनसून के सीजन में यानी कि फ्रॉम द मंथ्स ऑफ जून टू अगस्त, जब मॉनसून होता है, यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है और उसकी वजह से विजिटर्स कूर्ग विजिट नहीं करते बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। Season of joy commences from September and continues till March. Now season of joy यहाँ पर क्या मतलब है इसका? Happy. Joy means happy. तो यहाँ पर सीजन ऑफ जॉय या सीजन ऑफ हैप्पीनेस से हम क्या कह सकते हैं? एक प्रेफरेबल सीजन, यानी कि एक ऐसा सीजन जब मौसम अच्छा होता है और आप कूर्ग को विजिट कर सकते हैं। तो वो जो फेवरेबल सीजन है वो है फ्रॉम सितंबर टू मार्च। तो अगर आप कभी कहीं भी विजिट करते हैं तो जनरली सारे टूरिस्ट पहले चेक करते हैं कि उस डेस्टिनेशन का फेवरेबल सीजन कौन सा है, वहाँ पर विजिट करने का अच्छा मौसम, अच्छे महीने कौन से हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर राइटर ने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कूर्ग विजिट करने का फेवरेबल सीजन है सितंबर से मार्च का, जो कि विंटर सीजन होता है। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम में सितंबर से मार्च में यहाँ का वेदर बहुत अच्छा होता है और थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी होती है जो कि बहुत हैवी नहीं होती एंड वो मौसम को और अच्छा कर देती है। The air breathes of invigorating coffee. अब राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी कॉफी प्लांटेशंस हैं कि आपको हवा में भी कॉफी की खुशबू सूंघने को मिलती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners. Canopies means roof-like covering that forms a shelter. तो पेड़ इतने घने होते हैं कि वो एक छत बना देते हैं और उसको कैनोपी कहा जाता है। प्राइम हियर मींस बेस्ट। तो राइटर ये कहते हैं कि कूर्ग में बहुत सारे कॉफी एस्टेट्स और कलोनियल यानी कि ओल्ड टाइम के, ओल्डन एरा के बंगलोज देखने को मिलेंगे जो कि घने पेड़ों की छांव में बनाए गए हैं। वहां पे इतने डेंस फॉरेस्ट है कि वो एक शेल्टर बना देते हैं जिनके अंडर आपको बहुत सारे कॉफी एस्टेट्स और ओल्ड टाइम के ओल्ड फैशन बंगलोज देखने को मिलेंगे और वो कोडागू के हर अच्छे एरिया के कॉर्नर में देखने को मिलते हैं। सो दे आर अबंडेंट। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. Now, where is Greece? यहाँ पर देखिए, this is the world map and यूरोप के southern most हिस्से में है ग्रीस, जो एक बहुत ही ancient country है। And where is Arab? That means Arabia. यहाँ पर आप देख सकते हैं the western part of Asia, वहाँ पर lie करता है सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पर राइटर हमें कूर्ग के रहने वाले लोगों के बारे में बता रही हैं कि वो बहुत ही फायर्स हैं, यानी कि वो वॉरियर रेस है, वो इंडिपेंडेंट है और वो पॉसिबली ग्रीक या अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स हो सकता है ग्रीस या फिर अरेबिया से आए हों और वहां पर सेटल हो गए हों। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. So let us go back to history. हमें पता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेजन की थी और राइटर ये कह रहे हैं कि एक कहानी ये भी है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ लोग वापस अपने देश नहीं जा पाए तो वो साउथ की तरफ आ गए, कोस्ट के साथ साथ चलते गए और कूर्ग में आकर सेटल हो गए। और वही आज के
कूरग के रहने वाले लोगों के एंसेस्टर्स हैं। हो सकता है, मे बी पॉसिबल। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. मिक्स्ड कल्चर। Mainstream means a tradition which most people follow. हाँ, परंपरागत, यानी कि रूढ़िवादी। ज्यादातर लोग जिस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उसे हम मेन स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ पर राइटर कोडागू के लोगों की कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बता रहे हैं। वहाँ पर लोग अपने लोकल लोगों में ही शादियां करते हैं और उनका जो कल्चर है, जो उनके रीति रिवाज है, वो उनके शादी करने के तरीकों में, उनके मार्शल आर्ट्स यानी कि वॉरियर की जो प्रैक्टिस है उसके ट्रेडिशंस में और रिलीजन प्रैक्टिस करने के तरीकों में देखने को मिलता है और वो हिंदू कल्चर से अलग है। हो सकता है। हिंदू मेन स्ट्रीम May मीन्स be जो possible. हिंदूज के मेन ट्रेडिशंस हैं जो कि सब लोग फॉलो करते हैं, कोडागूज के ट्रेडिशंस उससे अलग हैं। मे बी स्लाइटली डिफरेंट। हाँ, The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an अच्छा। embroidered waist belt worn by the Kodagus. Known as kufiya, it resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. अब राइटर ये कह चोंगा, रहे हैं कि लंबा हम चोंगा कैसे पहनते कह हैं। सकते हैं कि कोडागू में रहने वाले लोग जिन्हें कोडागूस कहा जाता है वो अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स अरेबिया से हैं। ये चीज हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे कुफिया कहा जाता है वो अरब्स की ट्रेडिशनल ड्रेस कुफिया के बहुत मिलती जुलती है। ये ड्रेस कैसी है कोडागूस की? ये एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और उसके एक वेस्ट बेल्ट लगी होती है जो एम्ब्रॉयडर्ड होती है। और ये आप देख सकते हैं अरब्स की ट्रेडिशनल ड्रेस है कुफिया। और राइटर कह रहे हैं कि दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हो सकता है कोडागूस अरब डिसेंट के हैं, यानी कि उनके एंसेस्टर्स अरेबिया से आए थे और वहां पर सेटल हो गए थे। मे बी पॉसिबल। Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अच्छा, Valor means stories of courage बहादुरी। and bravery, usually in war. जब आप किसी वॉर पर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते बहादुरी हैं की जिनसे किस्से। कहानियां बन जाती हैं और आप ये कहानियां आकर अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को सुनाते हैं कि तब हाँ, उस बस लड़ाई परिवार में के लोगों को। फलाने सोल्जर ने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत बहादुरी दिखाई। तो ये है टेल्स ऑफ वैलर। अच्छा जी। अब राइटर बता रहे हैं कि कूरग में रहने वाले लोगों के घरों में क्या ट्रेडिशन है। वो हॉस्पिटेबल है, यानी कि वो बहुत वेलकमिंग है, अपने मेहमानों का बहुत आदर सत्कार करते हैं और वो अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं कि जैसे जब वो वॉर में गए थे तो क्या क्या इंसिडेंसेस हुए, किसने बहुत बहादुरी दिखाई। ये सब कहानियां लोगों को सुनने को मिलती हैं। The Kurag regiment is one of the most decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army, General Karyappa, was a Kurgi. Decorated means having received the maximum number of awards for bravery in war. कूरग रेजिमेंट नाम की हमारी इंडियन आर्मी में एक फोर्स है, एक रेजिमेंट है और यहाँ के सोल्जर्स मोस्ट डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं, यानी कि उन्हें वॉर में मैक्सिमम अवार्ड्स मिले हैं बहादुरी के लिए। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कूरग को बिलोंग करते थे। शाबाश। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि कूरग के मेन बहुत ब्रेव हैं। यहाँ भी बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स का जन्म हुआ है। और आज भी जो कूरग रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेकोरेटेड सोल्जर्स हैं। डेफिनेटली, श्योर। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. तो कूरग के लोग वॉरियर्स तो है ही हैं, ब्रेव भी हैं और साथ ही साथ सच्चे भी हैं, जेन्युइन हैं। तभी उन्हें ये परमिशन दी गई है कि वो फायर आर्म्स यानी कि वेपन्स कैरी कर सकते हैं विदाउट लाइसेंस। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन पर भरोसा किया जा सकता है, तभी इन्हें ये परमिशन दी गई है। फिर राइटर हमें बताते हैं द रिवर कावेरी obtained its water from the hills and forest of Kurag. Mahasir, a large freshwater fish, abound in these waters. अच्छा,
साउथ इंडिया में एक बहुत ही मेजर नदी है जिसका नाम है कावेरी, कावेरी। और ये नदी भी कूरग से ही ओरिजिनेट करती है। गंगा कूरग के साउथ हिल्स और फॉरेस्ट से साउथ ओरिजिनेट इंडिया की करती है, गंगा है। और इस नदी में महासीर नाम की फिश पाई जाती है। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब जहाँ जहाँ कावेरी नदी बहती है उसके आसपास बहुत सारे अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि कावेरी नदी में किंगफिशर नाम की जो बर्ड है वो डाइव लगा रही है मछली पकड़ने के लिए। स्क्विरल्स और लंगूर्स देखने को मिलेंगे जो कि आधा खाया हुआ फ्रूट कावेरी नदी में गिरते हैं, और वो एंजॉय करते हैं कि जब वो फ्रूट नदी में गिरते हैं तो पानी की जो स्प्लैश बाहर निकलती है वो उन पर गिरती है और वो उसको एंजॉय करते हैं। कावेरी नदी के साफ पानी में जो रिपल्स फॉर्म होती हैं, रिपल्स क्या होती हैं? जब भी आप पानी में कोई चीज गिरते हैं तो पानी में जो वेव्स बनती हैं, दोज आर कॉल्ड रिपल्स। इस स्प्लैश और रिपल्स को एंजॉय करते हुए एनिमल्स आपको वहां देखने को मिलते हैं। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Who is a mahout? Mahout is a caretaker. Elephant का जो caretaker होता है उसे mahout कहा जाता है। तो कूरग के जंगलों में एलिफेंट्स भी देखने को मिलते हैं, और आप देख सकते हैं कि कावेरी नदी के किनारे उनके केयरटेकर्स उन्हें नहला रहे होते हैं। So these are the main scenes that you can see at the banks of the river Kaveri. The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. Laid-back means relaxed, not in a hurry. River rafting is traveling in a river in a raft, which is a floating platform made by tying planks together. लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर एक प्लैंक बनाया जाता है, एक शीट बनाई जाती है जिसके ऊपर बैठकर लोग नदी में ट्रैवल करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर राफ्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं। Canoeing means traveling in a river in a canoe, that is a large narrow boat. यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की जिस टाइप की बोट पे ट्रैवल कर रही है ये कैनो है, और ये लड़की क्या कर रही है? कैनोइंग। Rappelling is going down a cliff by sliding down a rope. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लड़का है ये इस रस्सी के सहारे इस पहाड़ी के नीचे स्लाइड कर रहा है। दिस इज रैपलिंग। रॉक क्लाइंबिंग इज पहाड़ की चढ़ाई करना, जो कि ये लड़की कर रही है। माउंटेन बाइकिंग मीन्स पहाड़ी के ऊपर साइकिल चलाना। शाबाश। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि लोग कूरग में जाकर क्या क्या एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं, क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही लेट बैक यानी कि रिलैक्स लोग हैं जो कि आते हैं और वो अलग अलग एडवेंचर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं। और वो एडवेंचर स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। So in case you also want to perform or enjoy any of these adventure sports, Coorg is a nice destination for you. Okay. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Walking trail is a path created by walking. जंगल का एक ऐसा हिस्सा जिस पर लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटेड है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे क्लियरिंग सी बन जाती है, वहाँ के सारे पेड़ वगैरह हैं, जो पौधे हैं वो खत्म हो जाते हैं, वहाँ पे एक रास्ता बन जाता है, उसे आप कहते हैं वॉकिंग ट्रेल, पगडंडी। तो ऐसे ही कूरग में भी बहुत सारी वॉकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ पर ट्रेकर्स जो कि माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं या माउंटेन पे ट्रैकिंग कर रहे हैं वो चलकर ट्रैवल करते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macau's Malabar squirrels, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. Canopy is again a shelter which is formed by the dense trees. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अगर आप नेचर वॉक पर जाएंगे, ट्रैकिंग करने जाएंगे, तो वहां पर आपके साथ साथ बहुत सारी चिड़िया, मक्खियां और तितलियां भी होंगी। फिर वो ये कह रहे हैं कि पेड़ों के ऊपर से आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जानवर हैं जो कि पेड़ों पर बैठे हुए हैं और आपको चलता हुआ देख रहे हैं।
What are the types of animals? Macaws, Malabar squirrel. This is a Malabar squirrel. एक typical गिलहरी जो कि Malabar region में पाई जाती है. Langurs. This is a langur. And slender loris. तो इन तरह के अलग अलग जानवर आपको वहां पर पेड़ों पर देखने को मिलेंगे. I do, however, prefer to step aside for wild elephants. Now, there are wild elephants also in Kurag. और अगर कभी आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो राइटर कह सकते हैं कि अगर आपके रास्ते में एक जंगली हाथी आ जाए तो आपको साइड पर भी होना पड़ेगा उसे रास्ता देने के लिए. The climb to the Brahmgiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurag. Panoramic view means a view of a wide area of land. यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर खड़े हैं और आप ब्रह्मगिरी हिल्स जा रहे हैं तो आपको एक बहुत ही वाइड एरिया की व्यू मिलेगी, एक बहुत ही ओपन एरिया की व्यू मिलेगी जहां से आप मिस्ट से भरा हुआ लैंडस्केप देख सकते हैं और दूर ब्रह्मगिरी हिल आपको देखने को मिलेगी. अच्छा ये है. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम. ये है निसर्गधाम. ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इस पर पहुंचने के लिए आपको एक रोप ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है. तो राइटर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि निसर्गधाम एक आइलैंड पर लोकेटेड है जो कि 64 एकर्स एरिया पर स्प्रेड है. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. तो कूरग में टिबेटन सेटलमेंट भी है और वहां पर एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है. वहां अगर आप जाएंगे तो आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स देखने को मिलेंगे और इस मोनास्ट्री का नाम है बाइलाकप. तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि कूरग में कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कूरग विजिट करने का तो आपको राइटर ने एक आइडिया दे दिया है कि वहां पर कौन सी डेस्टिनेशंस हैं जो कि आप विजिट कर सकते हैं. हाँ, मोनास्ट्री भी देखेंगे. The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching from the heart and soul of India right here in Kurag. ये जो टिबेटन मोनास्ट्री है यहाँ पर आपको मॉन्क्स यानी कि टिबेटन प्रीस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने रेड, ऑकर यानी कि ऑरेंज और येलो कलर के रोब्स पहने होते हैं. तो यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ये एक ट्रेडिशनल टिबेटन मॉन्क है और इनकी जो रोब है यानी कि इनकी जो ड्रेस है, जो लंबा सा गारमेंट इन्होंने पहना है, ये ऑरेंज और रेड कलर का है. तो इसी कलर की ड्रेसेस पहने हुए बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क आपको देखने को मिलेंगे और जब आप ये सब चीजें देखेंगे कूरग में तो आपको ये लगेगा कि आप हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया देख रहे हैं. यानी कि कूरग में आपको इतनी डाइवर्स, इतनी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी कि पूरे भारत का सारा कल्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं. फिर राइटर हमें एक फैक्ट फाइल दे रहे हैं कूरग की. वो ये बता रहे हैं हाउ टू रीच, यानी कि कूरग पहुंचने के अलग अलग तरीके कौन से हैं. आप वहां पर बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं. कूरग जाने का एक ही रास्ता है, वो है मादीकेरी से जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है. और यहाँ पर आपको मिस्टी हिल्स यानी कि मिस्ट, धुंध से भरी हुई पहाड़ियां, बहुत ही घने जंगल और कॉफी की प्लांटेशंस देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर हैं. फिर वहां पर आप एक रिजॉर्ट या फिर कॉफी एस्टेट या फिर होम स्टे में रह सकते हैं कूरग को एक्सपीरियंस करने के लिए, कूरग का कल्चर और ट्रेडिशन एक्सपीरियंस करने के लिए. अगर आप एयर से जाते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर और बैंगलोर का. अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो नियरेस्ट स्टेशन है मैसूर, मैंगलोर और हसन. अगर आप रोड से जा रहे हैं तो 2 रूट्स हैं बैंगलोर से कूरग जाने के. एक है मैसूर के द्वारा और दूसरा है नीलामंगल, कुनिगल और चंद्रयापटना के द्वारा. तो ये लेसन पढ़ के हम सच में इतने ज्यादा फैंटेसाइज हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं कूरग की तरफ दैट मोस्ट ऑफ अस विल विश टू गो ऑन अ वेकेशन टू दिस nice, beautiful tourist destination.